ناظرین آداب، دکنامے کے ساتھ میں ہوں ہنا زبیر۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ہماچل کی ندی میں بہہ جانے والے تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے طلبہ کی تلاش جاری، 5 لاشیں برآمد، لواحقین ہیں غم سے نڈھال۔ محلوقین کے ورثاء خصوصی فلائٹ کے ذریعے پہنچے ہماچل، کالج انتظامیہ کے خلاف حقوق انسانی کمیشن سے کی شکایت۔ سیماندھرا اور تلنگانہ میں مانسون کی آمد، رائل سیما میں آئندہ 48 گھنٹوں میں مانسونی بارش کی امید۔ اور اب دکنامے کی خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سب سے پہلے بات کریں گے ہماچل پردیش کی، جہاں کی منڈی ضلع میں ویاس ندی میں بہہ گئے حیدرآباد کے انجینئرنگ اسٹوڈنٹس کی تلاشی مہم زور شور سے جاری ہے اور اب تک 5 طالب علموں کی لاشیں بھی مل گئی۔ یاد رہے کہ حیدرآباد کے ایک انجینئرنگ کالج کے 24 طلبہ ہماچل پردیش کے منڈی ضلع میں ویاس ندی میں بہہ گئے ہیں۔ جائے حادثہ مشہور سیاحتی مقام کلو سے 16 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ لارجی ڈیم سے اچانک پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ طلبہ حادثے کے وقت فوٹوگرافی میں مصروف تھے، اس کی وجہ سے وہ پانی کے آتے ہوئے تیز بہاؤ کو ہی نہیں دیکھ پائے۔ ایک فیکلٹی رکن اور ٹور مینیجر بھی لاپتہ بتائے جا رہے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر داخلہ این نرسمہا ریڈی ایک ٹیم کے ہمراہ آج ہماچل پردیش پہنچ گئے ہیں۔ لاپتہ طلبہ کی تلاش جاری ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے جوان بھی سرچ آپریشن میں جٹے ہوئے ہیں۔ مرکزی وزیر فروغ انسانی وسائل اسمرتی ایرانی نے ہماچل پردیش سانحے پر شدید افسوس کا اظہار کیا۔ اسمرتی ایرانی نے جائے حادثے کا معائنہ کیا۔ مرکزی وزیر فروغ انسانی وسائل اسمرتی ایرانی نے ہماچل پردیش کے وزیر اعلیٰ ویر بھدر سنگھ کو یقین دلایا کہ مرکزی حکومت سرچ آپریشن اور راحت اور بچاؤ کے کاموں میں ہر طرح کی مدد کرے گی۔ یہ ہے کہ جو ہمارے سروائیورز ہیں انہیں جلد سے جلد ان کے گھر تک، ان کے ہوم اسٹے تک ہم بھیجنے میں اپنی اور سے جتنی سہایتا دے سکیں وہ سہایتا دینے کی ہم تیاری کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ مجھے یہ سوچنا دی گئی ہے کہ انویسٹیگیشن اس میں ودھوت کی جائے گی اور کسی بھی نشکرش پر تبھی پہنچا جائے گا جب انویسٹیگیشن ہوگا۔ میں نے ابھی جو یہاں پر گھٹنا استھل پر استھانک ناگرکوں کی چنتاؤں کو سنا، وشیشتا ان بچوں کے بارے میں جو پراتھمک اور مادھیمک شالا میں پڑھ رہے ہیں، تو میں نے ایس ڈی ایم کو، اے ڈی ایم کو اس چنتا سے واقف کرایا۔ اور سرچ آپریشن میں سروسز سلیکشن بورڈ کے اہلکار بھی شامل ہیں۔ ایس ایس بی کی کمانڈنٹ نے کہا ہے کہ ایس ایس بی کے جوان طلبہ کی لاشوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ ایس ایس بی کی ٹیم میں خصوصی غوطہ خور بھی شامل ہیں۔ ہماری جو ہے ایس ایس بی کی ٹیم اس میں جو ہے لگی ہوئی ہے، جس میں ہم نے ان کو 2 ٹیم میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اپنی ٹیم کو، ایک سٹارٹنگ پوائنٹ سے اور ایک اینڈ پوائنٹ جو کہ پنڈو ڈیم ہے۔ لوکل ہیں ان کی بوٹس کی ہم لوگ مدد لے رہے ہیں اور وہ ہمارے لیے کافی ہیلپ فل ہو رہے ہیں کیونکہ پانی کا والیوم جو ہے بہت زیادہ ہے۔ تو ابھی تک ہم لوگوں نے 5 باڈی ریکور کی ہے۔ ڈیفیکلٹیز تو یہ ہے کہ پانی کا والیوم بہت زیادہ ہے، بوٹس کی سنکھیا تھوڑی کم ہے، اگر تھوڑا زیادہ ہونے سے ہمیں اور زیادہ مدد مل پاتی، کیونکہ ہم لوگ بینکس کے سہارے جو ہیں اور آبزرویشن کے سہارے جو ہے جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ ہم لوگ کر رہے ہیں۔ اور ہماچل پردیش کی منڈی میں پیش آئے اس حادثے نے محلوقین کے اہل خانہ پر گویا غموں کا پہاڑ توڑ دیا ہے۔ والدین اپنے بچوں کی موت پر یقین کرنے سے ہی قاصر ہیں۔ محلوقین کے افراد خانہ نے وگنان جیوتی کالج کے خلاف برہمی کا بھی اظہار کیا ہے۔
बच्चे के फोन से सार को देवल के बात करी, किरण कुमार अच्छे बच्चे को ढूंढ रहे हो, बोले क्या ढूंढ रहे कि मेरे समझ नहीं आ रहा, मेरा बच्चा मेरे को होना कुछ खबर नहीं है। अभी तक टीवी में देख के आए, अभी तक मेरा कुछ भी अच्छे है बोल के भी नाम नहीं आया अभी तक। वही मेरा परेशान हो, मेरा बच्चे को पानी बोल तो डर, कुछ भी डर, हमेशा घर में रहता मेरा बच्चा, बाहर कहीं भी नहीं जाता। जबरदस्ती लेके गए मेरे बच्चों के फ्रेंड है, और ये लोग भी कहीं को हर साल ऐसी रखते बच्चों को। गम और परेशानी की तस्वीर पेश करता ये मंजर कई खानदानों की गमगीन दास्तान खुद सुना रहा है। आसिया बेगम का ताल्लुक भी उन्हीं खानदानों में से है जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के मंडी में पेश आए भयानक हादसे में अपने मासूम बच्चों को खो दिया। आसिया बेगम अपने लड़के साबिर हुसैन के मुताल्लिक तफसीलात हासिल करने के लिए हैदराबाद के विज्ञान ज्योति इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कॉलेज गई। ताहम आसिया को अपने फर्जंद साबिर हुसैन के मुताल्लिक अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। हैदराबाद के बनस्थलीपुरम के अरविंद भी हादसे में हलाक हो गए हैं, और इस हादसे ने अरविंद के अहल खाना को एक ऐसा गम दे दिया जो शायद ही कभी भुलाया जा सके। कोकटपल्ली इलाके से ताल्लुक रखने वाली लक्ष्मी गायत्री नामी तालिबा भी इस अफसोसनाक हादसे में लापता हो गई, और लक्ष्मी की मौत ने उनकी वालिदा पर गमों का मानो पहाड़ तोड़ दिया हो। जिला खम्मम के 2 तलबा भी व्यास नदी में बह गए हैं। किरण कुमार और देवेंद्र 3 जून को हैदराबाद से रवाना हुए। दोनों नौजवान तलबा की मौत पर जिला खम्मम में गम और अफसोस का आलम है। इसी तरह जिला निजामाबाद के 2 तलबा इस हादसे का शिकार हुए। निजामाबाद के इलाके बोधन से ताल्लुक रखने वाले विष्णुवर्धन रेड्डी भी लापता हो गए हैं, जबकि जिला निजामाबाद का ही विष्णु नामी एक और नौजवान इस हादसे के बाद से लापता है। जिला नलगुंडा से ताल्लुक रखने वाले जी केतन भी हिमाचल प्रदेश की मंडी में पेश आए हादसे के बाद लापता हो गए हैं। केतन के लापता होने की खबर से उनके खानदान और दोस्त गम से निठाल हैं। इसी तरह जिला वरंगल से ताल्लुक रखने वाले अखिल भी हादसे में लापता हो गए हैं। अखिल ने इतवार के रोज शाम 4 बजे ही अपने घर वालों से फोन पर बात की थी, और अखिल के लापता होने की इत्तला मिलते ही उनके अफराद खाना भी हिमाचल प्रदेश रवाना हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट ईटीवी न्यूज। और विज्ञान ज्योति इंजीनियरिंग कॉलेज के मुंतजमीन के खिलाफ चाइल्ड राइट्स कमीशन ने ह्यूमन राइट्स कमीशन से रुजू कर लिया है। हिमाचल प्रदेश की नदी में तलबा की हलाकतों के लिए कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदार ठहराते हुए फौजदारी मुकदमा दर्ज करने और कॉलेज की मुसल्लमा हैसियत को ही खत्म करने का मुतालबा किया गया। चाइल्ड राइट कमीशन ने कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की मुबैना लापरवाही को ही तलबा की अमवात का बाइस करार दिया। कमीशन ने महलिक तलबा के लवाहिकीन को हर तरह की इमदाद फराहम करने की हुकूमत से दरख्वास्त की है। उधर हिमाचल प्रदेश की मंडी में पेश आए अफसोसनाक हादसे में बाज खुशनसीब अफराद अपनी जान बचाने में कामयाबी हो गए। आदिलाबाद से ताल्लुक रखने वाले पूर्ण शेखर अपनी जान बचाने में कामयाब हुए, और इतना ही नहीं, पूर्ण शेखर ने अपने वालिदैन को फोन करके इस हादसे की इत्तला भी दी। ऐसे ही एक स्टूडेंट रोमन तेजा ने ईटीवी से बातचीत करते हुए इस हादसे की तफसीलात से कुछ यूं आगाह किया। वीएनआर विज्ञान ज्योति कॉलेज से हूँ, ये हैदराबाद का कॉलेज है इंजीनियरिंग का, और हमने 3 जून रात को दक्षिण एक्सप्रेस में आए, आगरा आए हैदराबाद से, और वहां से हमने बस पकड़ा। आगरा में 2-3 दिन रह के एक दिन रह के हमने शिमला पहुंचा, और शिमले से आज सुबह मनाली जा रहे थे, तभी हुआ। तकनामे में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद तकनामे में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आज एमसेट इम्तिहान के नताइज का ऐलान कर दिया गया। तेलंगाना के वजीर बराए आला तालीम जगदीश्वर रेड्डी ने एमसेट नताइज जारी किए। एमसेट इम्तिहान में मजमूई तौर पर
79.77% तलबा ने कामयाबी हासिल की। जगदीश्वर रेड्डी ने बताया कि शोबा इंजीनियरिंग में 70.78% तलबा कामयाब हुए, जबकि शोबा मेडिसिन में 83.16% तलबा ने कामयाबी दर्ज की। वाज़ेह है कि एमसेट इम्तिहान आंध्र प्रदेश की तकसीम से पहले मुत्तहदा रियासत में मुनक्किद किए गए थे, इसलिए दोनों रियासतों के एमसेट के नताइज एक साथ ही जारी किए गए हैं। ఫస్ట్ ర్యాంకర్ ఇంజనీరింగ్ లో ఫస్ట్ ర్యాంకర్ నందిగం పవన్ కుమార్, సన్ ఆఫ్ నందిగం నారాయణరావు, कंबाइंड स्कोर। और एमबीए और एमसीए कोर्सेज में दाखिले के लिए मुनक्किदा इंटीग्रेटेड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2014 के रिजल्ट्स का भी ऐलान कर दिया गया। वरंगल की काकतिया यूनिवर्सिटी के सेंट हॉल में इंचार्ज वीसी और आईसेट कन्वीनर ओम प्रकाश ने रिजल्ट्स का सीडी जारी की। 92% से ज्यादा तलबा ने अहलियत हासिल की है। हैदराबाद के अभिनव ने 181 नंबरात हासिल करते हुए अव्वल मुकाम हासिल किया। आंध्रा यूनिवर्सिटी, उस्मानिया, वेंकटेश्वरा के अलावा दीगर यूनिवर्सिटीज के रीजन्स के लिए ये इम्तिहान मुनक्किद किया गया था। 1,29,529 तलबा ने इम्तिहान में शिरकत की, जिनमें से 1,19,756 तलबा ने एमबीए और एमसीए कोर्सेज में दाखिले की अहलियत हासिल की है। Out of 1,29,529, 1,19,756 candidates qualified, and this works out to 92.45%. This is slightly lower than the last year's percentage. हैदराबाद में रहमान एजुकेशनल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम जलसा तक़सीम इस्नात मुनक़्क़िद किया गया। इस जलसे में रुकन क़ानून साज़ काउंसिल हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने टेलरिंग का कोर्स मुकम्मल करने वाली लड़कियों में सर्टिफिकेट तक़सीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए हाफिज पीर शब्बीर ने कहा कि रहमान एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से लड़कियों और ख़वातीन को टेलरिंग की मुफ्त तरबियत दी जाती है और टेलरिंग का कोर्स मुकम्मल करने वाले तलबा को सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। How can the State Computer Institute राजधानी नगर के खरीदीदार को तकनीकी सेक्टर से फायदा हासिल कर रहे हैं। तेलंगाना महकमा तालीम के वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने आइंदा 5 सालों में 100% ख्वानगी का निशाना पा लेने का अज़्म ज़ाहिर किया। उनके मुताबिक आइंदा 5 सालों में तेलंगाना मुल्क की पहली मुकम्मल ख्वानदा रियासत के तौर पर उभर कर सामने आएगी। तमाम महकमों के कोऑर्डिनेशन के जरिए ड्रॉप आउट्स की शरह को कम करने का भी उन्होंने ऐलान किया। जगदीश्वर रेड्डी ने आज अपने ओहदे का चार्ज लेने के बाद ये बयान दिया। डी ब्लॉक के 142वें चेंबर में आज उन्होंने वजीर तालीम की हैसियत से अपना चार्ज हासिल किया। सरकारी स्कूल्स में मेयारी तालीम को यकीनी बनाने के लिए कोशा रहने की उन्होंने बात भी कही। असातिज़ा के सर्विस रूल्स के ताल्लुक से फरीकीन से मुशावरत के बाद ही फैसला लेने का उन्होंने यकीन दिलाया। तेलंगाना के वजीर आबकारी टी पद्मराव ने कहा है कि रियासत की एक्साइज पॉलिसी की बरकरारी के ताल्लुक से जल्द ही फैसला लिया जाएगा। अपने ओहदे का चार्ज लेने के बाद उन्होंने ये बयान दिया। सेक्रेटरीट में पूजा अर्चना के बाद टी पद्मराव ने अपने ओहदे का चार्ज लिया। इस मौके पर उनके अफराद खाना और रिश्तेदार उनके साथ थे। साथ ही उन्होंने एक्साइज महकमे को बदउनवानियों से पाक करने का अज़्म भी जाहिर किया। శాఖ పరంగా ఇంకా మేము ఏమి రివ్యూ మీటింగ్స్ కానీ అవన్నీ పెట్టుకోలేదు. ప్రజలకు అనుకూలంగా ఈ ప్రభుత్వం నడుస్తుంది. మేము కూడా ఈ శాఖ ఎక్సైజ్ అంటే కొద్దిగా బాగా సెన్సిటివ్ శాఖ. మాకు మచ్చ రాకుండా అంటే ఎవరైనా మా బంధువులే కానీ ఫ్రెండ్సే కానీ లీగల్ తప్ప ఇల్లీగల్ ఏ కార్యక్రమాలు చేపట్టవము. नई रियासत तेलंगाना की असेंबली का पहला इजलास आज से शुरू हो गया।
हाल ही में कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर के तौर पर मुंतखब होने के वाले के जाना रेड्डी ने प्रोटर्म स्पीकर के फराइज अंजाम दिए और नौ मुंतखब अरकान को हलफ दिलाया। वज़ीर आला केसीआर के बाद उनके काबिने रुफ़क़ा और दीगर अरकान ने हलफ लिया। इससे पहले आज सुबह राजभवन में तेलंगाना के गवर्नर ESL नरसिम्हन ने जाना रेड्डी को अबूरी स्पीकर और विद्यासागर को काउंसिल के चेयरमैन का हलफ दिलाया। 119 अरकान की तेलंगाना असेंबली में हुक्मरान TRS के 63 मेंबरान हैं। 21 अरकान के साथ कांग्रेस दूसरे नंबर पर है, जबकि TDP और BJP की 20 नशिस्तें हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 अरकान ने भी आज रुकन की हैसियत से हलफ लिया। तेलंगाना శాసనము ద్వారా ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను। తెలంగాణ శాసనసభ Swear in the name of God that I will shall భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను తెలంగాణ శాసనసభ సభ్యులుగా ఎన్నికైనందున तेलंगाना असेंबली के स्पीकर के इंतखाब के लिए आज नामजदगियां वसूल की गई हैं। मधुसूदन चारी का नाम सामने आ रहा है। TRS ने उनके इंतखाब कर लिया है। अब सिर्फ मधुसूदन चारी को मुत्तफिका तौर पर स्पीकर मुंतखब करने के लिए कोशिश की जा रही है। कांग्रेस तेलुगु देशम समेत तमाम अपोजिशन जमातें इस सिलसिले में ताउन के हुसूल की कोशिश कर रही हैं। मधुसूदन चारी ने आज नामजदगी दाखिल कर दी है। वज़ीर आला केसीआर समेत दीगर 11 अरकान ने मधुसूदन चारी की तायद का ऐलान कर दिया है। इसलिए कल सरकारी तौर पर बाकायदा मधुसूदन चारी का तेलंगाना असेंबली के पहले स्पीकर के तौर पर इंतखाब यकीनी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर VS संपत को इनकम टैक्स ने एक नोटिस भेजा है। महकमे ने ऐसे 15 अफराद की फहरिस्त बनाई है जिन्होंने 30 लाख रुपए से ज्यादा मालियत की गैर मनकूला जायदादें फरोख्त की हैं। VS संपत का नाम भी महकमे की लिस्ट में शामिल है। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 6000 गज का प्लॉट फरोख्त किया। 3 साल पहले साल 2011 में एक प्राइवेट कंपनी ने प्लॉट का सौदा 5 करोड़ रुपयों में तय किया था। खबरें और भी वक्त ब्रेक का। अरे मियां, मैं जरा JDA के मरकज मगरबी बंगाल के इस्लामपुर के स्कूलों में उर्दू जबान की बका क्यों पड़ी खतरे में, देखिए एक खास रिपोर्ट आज शाम 7:30 बजे खास बात में। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर रुख करेंगे हिमाचल प्रदेश का, जहां से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे रिपोर्टर प्रदीप। जी प्रदीप, तकरीबन 24 घंटे हो चुके हैं, इस वक्त क्या अपडेट है आपके पास? रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से जारी है? जी, जहां तक रेस्क्यू ऑपरेशन की बात है तो अब तक जो पिछले 24 घंटे में रेस्क्यू किया गया उसमें 5 लोगों की लाश अभी तक मिल सकी है। उनमें से 4 लोगों की शिनाख्त भी हो गई है। हालांकि अभी तक जितने भी 25 के 25 लोग थे उनकी सभी की जो डेड बॉडी है वो नहीं मिल पाई है। पुलिस के साथ साथ SSB के जवान और सैनिक बल के साथ साथ यहाँ पर जो स्थानीय राफ्टर है और उन राफ्टरों के सहयोग के लिए गोताखोर भी भाखड़ा वहां से बुलाए गए हैं। वे अपनी सहायता दे रहे थे, पूरे दिन भर वे काम पर डटे रहे। अभी भी कुछ एक लोग सर्च ऑपरेशन पर डटे हुए हैं, परंतु उन्हें सिर्फ 5 ही शव निकालने में सफलता मिल पाई है। जी प्रदीप, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी तरफ से किस तरह की हेल्प की जा रही है? जी, जहाँ तक स्थानीय प्रशासन की बात है तो स्थानीय प्रशासन ने जो बाकी 24 लोग बचे हुए हैं उनको स्थानीय यहाँ पर एक होटल में रेस्क्यू किया था, वहाँ पर ठहराया था और सभी लोगों को वहाँ पर खाने पीने के साधन उपलब्ध करवाए गए थे। इसके अलावा जो हैदराबाद से जो वहाँ की स्थानीय सरकार है, स्थानीय प्रशासन है, वहाँ से भी 2 जिलाधीश आज यहाँ कुल्लू पहुंचे थे। उन्होंने भी यहाँ पर जो है इसका जो अभी सर्च ऑपरेशन चला है उसका भी जायजा लिया और जो राहत कार्य चला है
है उसका भी उन्होंने जायजा लिया, और साथ में अपने साथ वो 24 लोगों को साथ ले गए जो 2 हेलीकॉप्टरों में 72 हेलीपैड से ले जाए गए हैं। तो यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है वो काफी इनकी मदद कर रहा है इस वक्त। जी प्रदीप, आपसे ये जानना चाहेंगे, आप वहाँ कल से मौजूद हैं, आपने हालात का जायजा लिया है, तो एडमिनिस्ट्रेशन तो हेल्प कर ही रहा है, लेकिन वहाँ के जो लोकल पीपल हैं वो जिस तरह से सामने आए हैं उसके बारे में क्या जानकारी है? जी जो स्थानीय लोग हैं वे अभी भी इस परियोजना प्रबंधन के साथ साथ वो प्रशासन के खिलाफ भी अभी भी उनमें काफी ज्यादा रोष फैला हुआ है। आज दिन को भी उन्होंने लारजी जो परियोजना प्रबंधन है उसके कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था। तो ऐसे में उनके अंदर काफी रोष अभी प्रबंधन के खिलाफ है। लोगों का भी कहना है कि यहाँ पर कभी भी सायरन नहीं बजता है, हूटर आदि नहीं बजाए जाते हैं, और न ही यहाँ पर नोटिस बोर्ड लगाए जाते हैं या फिर अखबारों में इश्तिहार दिए जाते हैं। किसी भी तरह की कोई ऐसी सूचना नहीं दी जाती है जिससे लोगों को पता चल सके कि यहाँ पर जो है डैम से पानी छोड़ा जाने वाला है। जी प्रदीप, आपसे ये जानना चाहेंगे कि किसी तरह की हेल्पलाइन वहाँ शुरू करी गई है, या जो पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं उनको जानकारी देने के लिए किस तरह से वहाँ पर प्रशासन जो है वो मदद कर रहा है? जी बिल्कुल, प्रशासन ने हेल्पलाइन वहाँ शुरू की है। वहाँ पर जिला का एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है और उसका नंबर भी दिया गया है, जो सब लोगों तक उन्होंने नंबर पहुँचा दिया है। अगर कोई किसी भी तरह की कोई जानकारी लेनी होती है तो उस नंबर पर वो जानकारी ले सकते हैं। वह प्रशासन ने सबको बता दिया है तथा राहत कार्य से लेकर जो सर्च ऑपरेशन चला हुआ है उसके हर पल की अपडेट उस जो फोन नंबर है उस फोन से वो दे रहे हैं। जी आपसे ये जानना चाहते हैं कि वहाँ अब तक जो फैमिलीज पहुंची हैं यहाँ से, हैदराबाद से, आंध्र प्रदेश से, तो उनके लिए किस तरह की हेल्प करी जा रही है? क्या उनमें से किसी से आपकी बातचीत हुई है? उनको किसी तरह की कोई शिकायत अगर है तो क्या वो चाहते हैं इस वक्त फौरी तौर पर? जी जहाँ तक हमने जो वहाँ पर लोग आए थे, उनके परिजन आए हुए हैं, उनसे हमने ऐसे ही बातचीत करने की कोशिश की थी। तो उन्होंने बातचीत में हमें ये बताया था कि यहाँ पर सिर्फ समस्या ये रही कि अगर वहाँ पर साइन बोर्ड होते, हूटर बजते तो शायद हमारे बच्चे नदी नालों की तरफ ना रुख करते और भी उनकी जान बच जाती। उन्हें सिर्फ इस बात का गिला है। हालांकि प्रशासन की तरफ से जो उनके लिए वर्तमान में सहयोग किया जा रहा है उससे वे खुश हैं और वे धन्यवाद भी प्रशासन का जाते जाते यहाँ पर कर चुके हैं। परंतु उन्हें सिर्फ गिला इस बात का है कि जो प्रयास उनके बच्चों को बचाने के लिए पहले किया जा सकते थे, जो फौरी तौर पर प्रयास पहले होने चाहिए थे, वे नहीं हुए थे। और उन्होंने यहाँ के स्थानीय प्रशासन से भी और स्थानीय जो मुख्यमंत्री आए देवभद्र सिंह जी भी यहाँ पर दिन को पहुंचे थे, तो परिजनों ने उनसे भी मुलाकात की और भविष्य में जहाँ भी परियोजना स्थल है वहाँ पर इस तरह के सूचना पट निश्चित करने के लिए उन्होंने मांग उठाई है। साथ में जब भी कभी ऐसे पानी छोड़ना हो तो उसके लिए वे मांग कर रहे हैं कि सबसे पहले उसकी सूचना दी जाए, क्योंकि जो बाहर से लोग आते हैं, खासकर जो पर्यटक आते हैं, उन्हें इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है और वे जैसे ही पानी कम दिखते हैं वे नदी में कूद पड़ते हैं। जी प्रदीप, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काफी लोग गए हैं और तेलंगाना के जो है वो भी वहां पर पहुंचे थे, होम मिनिस्टर भी वहां पर गए थे, नरसिम्हा रेड्डी भी वहां पहुंचे थे, स्मृति ईरानी भी वहां पहुंची थी, वीरभद्र राव भी वहां पहुंचे थे। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक किस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, क्योंकि काफी डरे हुए हैं अभी भी वहां पर जो लोग हैं? जी बिल्कुल, जो स्थानीय बाशिंदे हैं वे हालांकि काफी हद तक अभी भी डरे हुए हैं। उन्हें डर है कि कहीं आने वाले कुछ दिनों में दोबारा से इसी तरह की घटना ना घटे, क्योंकि वे भी अक्सर नदी नालों के आसपास जाया करते हैं। जहां तक बात प्रशासन की है तो उन्होंने जो भी यहाँ बड़े नेता आए उन्होंने सारी गलतियां जो वहाँ पर पर्यटक पिकनिक मनाने आए थे उनके सिर पर थोप दी है और कहा कि बकायदा हमने हुटर बजाया था और इन्होंने नहीं सुना और वे उसको जानते हुए भी अनसुना करके वहाँ पर बैठे रहे। लेकिन जहाँ तक बड़े अधिकारियों की बात है और बड़े नेताओं की बात है, हिमाचल प्रदेश की बात है, तो हिमाचल प्रदेश में भी कहीं ना कहीं वे अपनी खाल बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका एक ही तर्क है कि इसके हुटर बजाया गया था। परंतु जो स्थानीय बाशिंदे हैं और साथ में जो पर्यटक है वो साफ तौर पर पहले भी कह चुके हैं और बार बार कह रहे हैं कि इस तरह का कुछ भी वहां पर नहीं हुआ था। अगर ऐसा होता तो वे शायद नदी के किनारे ना जाते।
जी प्रदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप वहां नजर बनाए रखिए, अगले बुलेटिन में हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो नाज़रीन, ये थे हिमाचल से हमारे नुमाइंदे प्रदीप, जो कि बता रहे थे कि फिलहाल तलाश जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है और मकामी इंतजामिया की तरफ से जोर शोर के साथ जो है तलाश की जा रही है और हर तरह की मदद करने की भी कोशिश की जा रही है। रुक करेंगे दूसरी खबर का। तेलंगाना असेंबली के लोगों में उर्दू जबान को नजरअंदाज कर दिया गया है और इस मामले पर तेलंगाना कानून साज काउंसिल में कांग्रेस रुकन मोहम्मद अली शबीर ने एहतजाज दर्ज करवाया है। तेलंगाना असेंबली के लोगों में उर्दू जबान को नजरअंदाज किए जाने पर अफसोस जताते हुए मोहम्मद अली शबीर ने हलफ लेने से इनकार कर दिया। ताहम मोहम्मद अली शबीर के एहतजाज पर तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने मुस्बित रद्दअमल का इजहार किया। वज़ीर आला ने तेलंगाना असेंबली के लोगों में उर्दू जबान को शामिल कराने का यकीन भी दिलाया। केसीआर की यकीन दहानी के बाद मोहम्मद अली शबीर ने कानून साज काउंसिल की रुकनीत का हलफ लिया। आइंदा 48 घंटों के दौरान मानसून के बादल रायलसीमा इलाके में पहुंच जाने की उम्मीद है। बहरे अरब में हवा के कम दबाव का मरकज आइंदा 24 घंटों के दौरान तूफान में तब्दील हो सकता है। तूफान का असर बरकरार रहा तो 13 तारीख तक तेलंगाना में भी मानसून के बादल अपना असर दिखा सकते हैं। आइंदा 48 घंटों के दौरान साहिली आंध्रा, रायलसीमा, शुमाली तेलंगाना में बारिश होने की पेशगोई भी की गई है। मेदक जिले के गावरम में पेश आए एक ट्रक हादसे में एक ही खानदान जान से हाथ धो बैठा। रंगारेड्डी जिला शाहमीर के अनंतारंखू का रहने वाला किरण अपनी अहलिया और बच्चों के हमरा गजवेल में अपनी ससुराल से वापस अपने आबाई मुकाम जा रहा था कि सड़क पर सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर दे दी। इस हादसे में 34 साला किरण, 30 साला लावण्या, 6 साला मिनी और 4 साला नंदी मौके पर ही हलाक हो गई। लाशों का पोस्टमार्टम गजवेल के सरकारी अस्पताल में किया गया है। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। दकिनामे में फिलहाल इतना ही। एक छोटी सी ब्रेक के बाद देखिए टीवी उर्दू कश्मीर।